श्री गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा सा कीर्तन करो। राधा राधा कृष्ण राधा 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला
बिहारी लाल की जय। जय। अत षडसो अध्याय, 6th अध्याय, श्रीमद् भागवत गीता के 6th अध्याय। श्री भगवान वाच। आप लोग जानते हो हाउ डिड दिस श्रीमद् भागवत गीता केम अबाउट? Do you understand? Do you know? In the battlefield, that I'll explain to you. In the battlefield, when Kauravas and the Pandavas were about to fight, they were cousins. But Kauravas took all the kingdom from Pandavas. Pandavas were 5 brothers. And Kauravas were 100 brothers. Their father, both of their fathers were brothers. So they were first cousin. But the Kauravas, the 100 brothers, took everything from the Pandavas. And they tortured them. It's a long story, but they tortured them. Right? They were sent to the forest in exile for 13 years. So 12 years, noble exile, and 1 year you have to be in hiding. If they find out where you are, then you have another 13 years. So this was, and then it came to a crunch that we have to fight now. Krishna was on the side of the Pandavas. So we have to fight now. And Krishna became the chariot driver of Arjuna. As I was telling you, he became the chariot driver of Arjuna. In essence, as I told Isabella, in essence, when we give our reins, our life's rein to Krishna, he will drive us everywhere. At the moment, we drive ourselves. And what drives us is our 5 senses and our mind. 5 senses and our mind. If we think wrong, guess what? We'll do wrong things. If we think right, we'll do right things. We control by our senses. So many times we know that this is not right, this is wrong, but still we do it because our senses want it. So Srimad Bhagavad Gita, when they were about to fight in the battlefield, all the couches were all, poo, everything, drums, everything rolling. Then Arjun became very sad. He says, I'm not going to kill these guys. They are my brothers. Moho aa gaya. Moho means attachment. Yeah. It's the attachment versus the righteous and the wrongs. What you have to do, the right or the attachment. So he said, I'm not going to fight. So that's where Srimad Bhagavad Gita evolved. Krishna started telling Arjuna what is right and what is wrong. How we can better ourselves. So this is not a religious book. This is a book, if we follow, it becomes a humanity book. All the human beings, what a human being should be. This is what Krishna is saying. At the moment, if you look around, even though we are human beings, we are not humans. We're killing, we've got lust, we've got anger, we've got jealousy, we've got everything in ourselves. So this is what Krishna says, we have to control it. So that's, I'm reading chapter 6, and that वहां से हम लोग शुरू करते हैं. श्री भगवान वाच. श्री भगवान बोले कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय लेकर करने योग कर्म करता वह सन्यासी तथा योगी है. When we do something, we should not expect anything in return. कर्म फल की हम कर दिया, this is my duty, I've done it. If I get anything, good luck. If I don't get anything, I'm happy. तो भगवान वही कहते हैं, कर्म फल को त्याग कर. और कोई भी कर्म करते हम उसके फल की इच्छा नहीं करते, तो वही सन्यासी के मतलब कि वो he's a saint और योगी है.
योगी का मतलब है कि जो अपने योग से बीच में आ जाए, ना इधर जाए ना उधर. Who Gita tells us to be in the equilibrium, middle में आ जाओ. You don't, when you are, if something happens to you, don't get really excited. When something bad happens, you don't get upset. You have to be in the middle. That's what human beings should be, right? और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है. हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान. योग के मतलब है कि हम भगवान से जुड़ के रहे. ऑलवेज बी इन टच ऑफ कृष्णा, उसको योग कहते हैं. As we know, I don't know if you know or not, in our body there are two things, body and soul, we say. Right? Soul is everlasting, it never dies. Body is the one who dies every second. When we die, if somebody dies, we say, he died suddenly. But no, he doesn't. Nobody dies suddenly. We start dying the minute we were born. नहीं, जिस दिन से हम लोग जन्म लिया उसी दिन से हम लोग मरना चालू हो जाता. We only have, if somebody dies, that means we have completed our death. That's our completion. But we die every day. Scientifically, our body cells die every day as well. तो यह कहते हैं भगवान की संन्यास योग, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता. संकल्पों का त्याग, वी शुड, संकल्प किसे कहते हैं? संकल्प मीन डिजायर्स. हमारे इतने डिजायर्स रहते हैं, उनको हमारे को त्यागना है. हम जो डिजायर्स है उनको त्याग नहीं सकते. एंड डिजायर्स आर ऑलवेज देयर. छोटा डिजायर, बड़ा डिजायर, आता खड़ा होता और चले जाते, आते खड़े होते और चले जाते. योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है. जो योग में आना चाहता है, यानी योग मतलब जो भगवान से लगना चाहता, वो निष्काम कर्म करे. कर्म करे लेकिन निष्काम कर्म करे. और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण के हेतु कहा जाता है. सर्व संकल्पों का अभाव. संकल्प के मतलब जितने हमारे कितने डिजायर्स हैं, सो मेनी डिजायर्स. आई वांट दिस, 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 आई वांट दिस. It never ends. You finish one, 100 is already standing there. You finish another one, 100 comes up. And so many desires we don't even need to have. There are two things, want and need. Need हमारे को भगवान ने दिया. Want से कभी you will never get over with want. Always want something. But need we have. We have clothes, we have food, we have house. Our need is always there. But want, we always want more than what we need. So वही भगवान कहते हैं कि इसको कंट्रोल करना. You have to control this. See if this is want or need. Want के पीछे हम लोग इतना भागते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है. And we don't know. We don't realize this, that I'm running after this wants and we finish our life, and then in the end when we are dead, guess what? Everything is zero. पूरा जीवन भर 50, 60, 70 years हम दौड़ा want के पीछे. But in the end, I just been to the funeral and I had a look now. The guy, big guy, everything. We went and threw the ashes. It was only in this box, big box. Ashes, and then we put in the river, and that's it. He was finished. That's our
want. We want. But want never finishes. Need is always there. Need is always fulfilled. Roti hai, do roti hai, khana. Then when you are a multimillionaire, you're still going to eat 2 rotis. You're not going to eat 100 once you become millionaire. You're not going to increase your diet. In fact, when you become rich, you'll reduce your diet. You'll say, no, I'm dieting. So, your need hai is always filled. But want is the one which is the problem. तो वही भगवान बताए, we should not be wanting too many things. Look around. I'm satisfied. I'm happy with this. Right? Always be content. Yog, भगवान यहाँ योग कौन सी बोले? Yog is contentment. कि you are here, संतोष. I'm happy. Right? क्या लेकर आए थे? What did we bring in this earth, and then what are we going to take with us? One thing, devotion only. Everything stays here. और योगारूढ़ हो जाने पर वह योगारूढ़ पुरुष जो सर्व संकल्प, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है. न इंद्रियों के संकल्प, no desires from your 5 senses. We've got these 5 senses. Okay? 5 senses is the one which is controlling us. My eyes want to see something, I'll run hundreds of miles and have a look at, there's nice waterfall there. Wow. And it's only a trickle. Say, yeah, and then we'll be happy. Eyes mange, kaan mange ko sune. We'll run so many, but guess what? When we come back, we'll say, you go on a holiday. Beautiful, come back. Guess what? That holiday becomes a dream. You only think, yeah, Bali mein hum log aise raha. Nice, Bali is very nice. But then, what happens? That becomes a dream. So we all are dreaming about things which may never happen, or which happens but becomes dream. In the morning we came here to cook, and that is dream now. Everything is dreaming. With open eyes we are dreaming everything. So वही कृष्णा यहाँ कहे, अपने इंद्रियों के भोगों और ना कर्मों में आसक्त हो. You have to control your senses. Your 5 senses, you control your 5 senses. और भोगों में आसक्त ना हो. Don't get attached in materialistic things. I want this. उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है. अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह पुरुष आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है. यहां भगवान बहुत अच्छा बताते हैं कि हम खुद ही, आई एम माई ओन फ्रेंड एंड आई एम माई ओन एनिमी. Nobody can tell me what to do or how to liberate myself. I am the only one who knows how to liberate myself. हम अपने आप के फ्रेंड कब है? जब हम इसको कंट्रोल, when I control all my senses and go to Krishna, I am my friend. If I am busy in this materialistic thing, हम अपना शत्रु है. कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु. ये कर दो भैया. कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं. हम ही खुद अपना मित्र, अपना शत्रु है. जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, अपने मन को और इंद्रियों को जीतना है, उनको कंट्रोल में करना है. जिस जीवात्मा द्वारा, जो जीवात्मा है हमारे सोल को, जिस जीवात्मा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है. इज योर फ्रेंड. इफ यू कंट्रोल योर इंद्रिया, योर सेंसेस एंड योर मन, योर माइंड.
कंट्रोल कर लिया कि हमारे को क्या चाहिए कहां, तो आप ही अपना मित्र है। और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बढ़ते। वो आपका ही सबसे बड़ा एनिमी क्यों? बिकॉज हम लोग के मनुष्य शरीर मिला है किस लिए? एक चीज हम लोग के सोचे कि वाई इज दिस ह्यूमन बॉडी इज गिवन टू अस। खाओ पियो मौज करो चले जाओ, नहीं कि वी बिलीव इन 8.4 मिलियन स्पीसीज, 84 लाख, 8.4 मिलियन स्पीसीज हम लोग है, एंड वी human being is the one who can liberate themselves from this 8.4 million species and attain Krishna. हम लोग ये मिस कर देते हैं ना, तो हम फिर 8.4 मिलियन स्पीसीज में आते हैं, गधा बनते, कुत्ता बनते, घोड़ा बनते, क्या क्या बनते। तो यहां पर वही करते हैं, भगवान कहते हैं कि हमको इस शरीर से अपने आप को उद्धार करना, लिबरेट करना। मनुष्य शरीर ऐसा मिला कि इससे हम लोग को, हमारे को भगवान की भी प्राप्ति हो सकती है। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। ये तो सब जीव जंतु भी करते, गधा करता, घोड़ा करता, कुत्ता करता, हमसे अच्छा करता नहीं? काय हमसे अच्छा करे? वो लोग के जो चीज करे के वो चीज करके जावे। कुत्ता के काम है भूखो, भूख के जावे नहीं? गधा के काम लोड धोना, लोड धोए के जावे। हम लोग के काम अपने आप के लिबरेट करना, हम लोग इसको नरक में लेकर जाते, हम लोग और इससे नीचे गिरा देते। तो कौन अच्छा? कुत्ता लोग एनिमल अच्छा कि हम लोग अच्छा? यही श्रीमद् भागवत गीता समझाता है कि देखो कौन कैसे हम खुद ही अपना मित्र बने, इसको लिबरेट करें। और कहता है, भगवान कहते हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, इसमें सम शांत नहीं? We get carried away even with the weather. We get upset with the weather. First thing you meet somebody, it's too hot, man. Ooh. है तो है, it's too hot is hot, you bear it. Yeah, it's too cold, bear it. सर्दी गर्मी, सुख दुख, सुख है और दुख भी है। सैडनेस और हैप्पीनेस, सुख दुख, ये सब आते हैं। मान अपमान, somebody praises you, somebody insults you, we get carried away. He praised me, I'm over. Yeah, he insulted me, I can't get over with him. एकदम हम कर लेता। भगवान कृष्ण बतावे हमको सम रहना। सम मतलब in the middle. Somebody praises, good luck. If somebody insults, good luck. It's the words they're saying. Nothing is hitting me. नहीं? कुछ हमारे को लगे, कोई हमारे को इंसल्ट करे, कुछ नहीं लगते। कोई हमारे को प्रेस करता, कुछ नहीं लगता है। हमारे को अपमान कब जस्ती लगता है? जब हम मान चाहते हैं, तब हम मान चाहते हैं, अपमान हमारे को होता, तब हम दुखी होते कि ये हमारे को अपमान कर दिया। लेकिन हम मान चाहिए नहीं तो अपमान करते, सो भी दैट्स हिज ओपिनियन। Why should I get carried away with somebody else's opinion? तो वही है, भगवान बोले हैं कि इसमें सम होना, सम मीन्स भली भांति शांत। We all want peace, शांति भगवान कहते हैं, peace, but we are looking in different places. Peace हम लोग अंदर मांगते हैं, we want peace inside, but we are looking for peace outside. घर बड़ा हो हमारे को शांति मिलेगी, परिवार अच्छा हो शांति मिलेगी, पैसा हो शांति मिलेगी। तो आउटसाइड से हम पीस मांगते हैं ना, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से हम पीस मांगते हैं।
If I have money, I'll be happy. I'll have peace. A big house, big car, whatever. Materialistic things से अगर हम शांति मांगते तो कभी नहीं मिली. शांति हमारे को अंदर जाना है. भगवान वही कहते हैं, शांति भली भांति अंदर से हम कंटेंट रहे. If I'm satisfied with inside, I'll be happy. शांति, हम लोग सबको शांति. तो स्वामी जी हर समय बताए ना, बोले जैसे हमारे भूख लगी पेट में, लेकिन हलवा हम पीठी में मान लें. हम सोचे हमारे को भूख खत्म हो जाएगी ना, भूख हमारे को पेट में लगी है, हलवा हम पीठी में बांध दें कि हमारे को भूख खत्म हो जाए. ऐसे नहीं, ऐसे शांति हम लोग अंदर की शांति हम बाहर खोज रहे हैं. शांति मीन्स अंदर, हम बाहर खोज रहे हैं. वही भगवान यहां कहते हैं कि ऐसे स्वभाव सावधानी, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है तथा उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं. If you find inner peace, that means you found Krishna. परमात्मा अंदर में आ गया. उस कृष्णा इज सत चित आनंद. यहां बोले हैं जो परमात्मा के अंदर में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है, क्योंकि उसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं. जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई, अपनी इंद्रियों को जो 5 सेंसेस को अपने कंट्रोल में कर रखा है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है. जिसके लिए बोले मिट्टी पत्थर और स्वर्ण, मिट्टी पत्थर और सोना समान हो जाते हैं. ये हमारे को समान होती है. हम लोग मिट्टी देख के बोलेंगे नहीं, पत्थर देख के, सोना देख लेंगे तो है मिट्टी पत्थर स्वर्ण भगवान या सोना गोल्ड शुड बी इक्वल. डर्ट स्टोन एंड गोल्ड. पर्सन हु लुक्स एट इट as equal is the one who's got शांति नहीं. कैसे इक्वल? How you can say this is equal? Gold is gold ना. लेकिन ये सब पृथ्वी में से आते हैं कि नहीं? All these three come from the earth. नहीं, पत्थर भी धरती में से आता है, सोना भी धरती में से आता है, मिट्टी भी धरती में से आता है, तो सब समान होना चाहिए ना. हमारे को सोना देखकर हम चकित हैं, वाव सोना, मिट्टी पत्थर. हालांकि सब मिट्टी सब पत्थर ही है. सोना भी एक तरह का पत्थर ही है ना, जो धरती में से निकलता है, बट इज वैल्यूएबल. दैट्स व्हाई वी से. तो वही बोले जो ऐसे होता है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण को समान मानता है, वह योगी युक्त और भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है. उसको भगवत प्राप्ति हो गया जो तीनों को एक जैसा मानता है. सोने को, मिट्टी को, पत्थर को एक जैसा. इसके मतलब ही हैज अटेन्ड कृष्णा. उसके तीनों में इफ इट कम्स फ्रॉम द अर्थ, द ऑल सेम. सुहद्र मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु गणों में और धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है. भगवान यह एक बात कहते हैं कि हमारे सब के अंदर में भगवान है. एवरी सोल हैज कृष्णा इन देम. वंस दैट गोज, आत्मा निकल के चला गए, आत्मा ही परमात्मा है. आत्मा निकल के चला गए तो बंदा, हम बोलेंगे कि मर गए, शरीर त्याग दिस ना. लेकिन जो सब में परमात्मा को देखे,
सब में कृष्ण भगवान वही बताते हैं, सब में परमात्मा को देखो। घोड़ा में भी परमात्मा है, गधा में भी परमात्मा है, हर जीव जंतु में परमात्मा है। वही है भगवान बोले सुहद है, सुहद तुम्हारा बहुत प्रेमी हो, मित्र है, फ्रेंड, बैरी तुम्हारा दुश्मन भी, इफ इज योर एनिमी, उसमें भी भगवान है, उसमें भी कृष्ण है। उदासीन, जो किसी से मतलब नहीं रखे, उसमें भी भगवान है। मध्यस्थ है, जो मिडिल मैन है, जैसे किसी का मिडिल मैन हो जाता है ना, मध्यस्थ, उसमें भी भगवान है। द्वेष और बंधुगणों में, जो द्वेष करता है किसी से, somebody is hating you, उसमें भी भगवान है। और बंधुगणों में, बंधुगणों यानी तुम्हारे मित्र में, फैमिली में भी, धर्मात्माओं में, हम लोग नॉर्मली जो धर्मात्मा होते हैं, जो भगवान के भगत होते हैं, उसी में भगवान को देखते हैं ना, किसमें भगवान। लेकिन यहां भगवान बताते हैं धर्मात्माओं में तो देखो, और पापियों में भी, पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। पापी लोग में, धर्मात्मा में भी भगवान और पापी में भी भगवान। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं कि सब में भगवान देखना बड़ा डिफिकल्ट। और हमारा स्पेशली कोई हमारा बैरी हो, उसमें हम कैसे भगवान देखेगा? नहीं, जो हमें हाइट करे, जो हमें हरदम गाली दे, उसमें कैसे भगवान देखेगा? लेकिन भगवान वही बतावे कि अपने आप के ऐसे ढाल लो कि हम पर्सन को मत देखो, उसके अंदर देखो कि भगवान कैसे। क्योंकि ये अभी हम लोग कल जो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे थे, उसमें बताया दिस इज जस्ट लाइक चेंजिंग क्लोथ्स, दिस इज गिवन टू अस एज अ क्लोथ्स। राइट, पुराना हो जाए, इफ द क्लोथ्स गेट ओल्ड, गेस व्हाट, वी चेंज इट, नहीं? एंड हाउ डू वी चेंज इट? रोते रोते हम लोग चेंज करें कि हंसते हंसते? कोई हमारे को नवा क्लोथ दे दे और पुराना कपड़ा बोले ही बहा दो, हम क्या करेंगे? हम हंसते। अभी पुराना कपड़ा थ्रो इट हैप्पीली ना, एंड नवा कपड़ा पहन लेंगे, नहीं? ऐसे ही दिस बॉडी इज जस्ट लाइक अ क्लोथ्स, एंड दिस इज गॉन ओल्ड। वंस वी चेंज दिस, देन वी आर गिवन न्यू क्लोथ्स। न्यू क्लोथ्स जैसे कि अगर गधा के भी योनि मिले, दैट्स न्यू क्लोथ्स टू अस। घोड़े कुत्ता का मिले, दैट्स न्यू क्लोथ्स, नहीं? बोलो उसमें हमको परेशानी नहीं होना। कल श्रीमद् भगवद गीता में 2nd चैप्टर में भगवान कहे कि ये वस्त्र है, ये शरीर हमारा वस्त्र है, जीर्ण हो जाता है, और जितना समय हमारे को मिला है ना, उससे एक क्षण आगे एक क्षण पीछे नहीं हो सकता। वी आर गिवन certain number of breath, this many thousand or millions of breath you're going to take in your life, and once that finishes, guess what? Not 1 second before, not 1 second after, we expire. तो हम लोग बोलता है कि अरे ये तो इतना जवान रहा, मर गए। नहीं, उसको उतना ही सांस मिला था। इंस्टेड ऑफ हम लोग को रोने से उसके कल्याण के लिए भगवत गुणानुवाद करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और उसको जो भजन कर कर हमको उसको अर्पण करना चाहिए। बेस्ट थिंग तो ये है, बेस्ट थिंग तो एक खुद इतना भजन कर लो कि अगर हम चले गए, कोई भजन करे ना भजन करे चलेगा, नहीं? खुद भजन कर लो, क्योंकि एक ये शरीर मिला है भजन करने के लिए। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग काम धंधा छोड़ के केवल भजन ही करें, नहीं? नहीं, वो श्रीमद् भागवत गीता इतना सुंदर बताता है कि अपना जो काम धंधा, जो नित्य निर्वैतिक कर्म है ना, मेक दैट एज योर भजन।
I am doing everything for Krishna. If I'm working for somebody, guess what? I'm not working for him, I'm working for Krishna. ये thought process change करो. हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं. That becomes devotion. कृष्णा जब गहराई में उतरो, जो श्रीमद् भागवत गीता जो बताया तो बहुत बढ़िया बताया. डिवोशन, हम लोग सोचते हैं कि डिवोशन इज वेरी हार्ड, बट व्हेन यू गेट डीप, डिवोशन इज वेरी वेरी इजी. कुछ भी करो, खाओ, भगवान के लिए खा रहे हैं, पियो, भगवान के लिए कर रहे हैं. केवल चेंज करना. अभी हम अपने लिए पी रहे हैं, फिर हम बोले ना, हम गोना चेंज, अब हम भगवान के लिए पी तो तू ही रहा है ना, शरीर में तेरा ही जा रहा है, लेकिन आप भगवान के लिए कर रहे हो, तो दैट बिकम्स डिवोशन. श्रीमद् भागवत गीता जो कितना सुंदर से वो बताता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से ढाले. तो वही यहां भगवान कहते हैं, सब में हम परमात्मा को देखें, पापी में, साधु में, सब में ठाकुर जी को देखें. मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे. अकेला. अब यहां अकेला का मतलब क्या है? अकेला का मतलब कि हम घर छोड़कर चला जी नहीं. अकेला का मतलब कि हम जब हर समय भगवान से संबंध रखेंगे ना, तो हम अकेले. एक साधु था, वो बैठा था, तो एक अपने भगवान के ध्यान में था. तो एक और बंदा आया, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप अकेले कैसे बैठे? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं अकेले बैठा नहीं, अब अकेला हो गया. मैं जब बैठा था तो हम भगवान से संपर्क कर रहा था, राइट. जब हम बैठा, देखने में लग रहा था कि अकेला है, राइट. वो बैठकर भगवान से ध्यान कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था. और जब उन्होंने पूछा कि आप अकेले कैसे, तो भगवान से ध्यान टूट गया. तब उन्होंने कहा कि अब हम अकेले हैं. अभी तक तुम साथ था मेरा कोई ना, अब आपने पूछा अकेले कैसे, तो अकेला. अब दो कितना डिफरेंट दृष्टि है ना. जो पूछने वाला देखा कि अकेले बैठा है, लेकिन जो साधु थे वो भगवान से संपर्क कर वो साथ में भगवान के बैठा. तो ये ऐसे अकेला होना चाहिए. अकेला ऐसे कि जैसे हम भगवान से हरदम संपर्क में रहे, तो हम अकेले हैं. देखने वालों को लगता है कि अकेला, ये भगवान कहता है. देखने वालों को लगता है अकेला, लेकिन आप अकेले नहीं, आप भगवान से लगे हुए हो. क्योंकि आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाओ. इस आत्मा को जो है वो परमात्मा में लगाओ, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के हैं. शरीर और संसार एक ही तत्व के हैं. अभी जैसे आगी आप मारो ना, आगे आप जितना ऐसे नीचे करोगे, कभी नीचे नहीं, ऊपर ही जाएगा. क्या है? आगी सूर्य भगवान के स्वरूप है. पानी को आप जितना ऊपर बहाओ नीचे आएगा, क्योंकि पानी नदी का है, समुद्र का है. ऐसे आत्मा को आप कुछ भी कर डालो, वो परमात्मा में ही लगेगा जाकर. आत्मा परमात्मा का सतचित आनंद का एक टुकड़ा है. शुद्ध भूमि में उसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछा है, जो ना ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो. ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थान करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें. अब यहां पर योग का बताते कि कैसे योग का अभ्यास करें. भगवान कहते योग मतलब कि हम अपने सब बखेड़ों से बटोर कर भगवान में ध्यान लगाते, उसे योग कहते. हमारे में कितना बखेड़ा है, कितने अननेसेसरी थॉट्स हमारे दिमाग में है. पास्ट वाला 40-50 ईयर्स तुम देखा, चाइल्डहुड में अगर आपके साथ में कोई कुछ कर दे,
प्राइमरी स्कूल में तब प्राइमरी स्कूल में तुमने हमारे को ऐसे किया था 50 years later। नहीं, मतलब कि अभी भी कचरा भरा है आपके उसमें। Now we carry so many rubbish in ourselves, unnecessary rubbish, right? That gives us tension, that gives us depression. We get depressed. What is depression? Depression is a state of mind. कि आपका दिमाग के कहां पर रखा हुआ वो डिप्रेशन। एंड सबसे बढ़िया दवाई डिप्रेशन का श्रीमद् भागवत गीता है। जो श्रीमद् भागवत गीता को अपना लेता दे कैन नेवर गेट डिप्रेस्ड। श्रीमद् भागवत गीता में कहता कि कैसे तुम आत्मबल, हाउ कैन यू बी स्ट्रॉन्ग इनसाइड। तुम इनसाइड स्ट्रॉन्ग है, बाहर कुछ भी आवे इट विल नॉट अफेक्ट यू। काया, सिर और गले को समान यो अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाव पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। और योग भी करना है तो भगवान के परायण हो जाओ। सब कुछ भगवान को सौंप दो कि भगवान ये मेरा मन है, तू इसको संभाल, तू संभाल। अर्जुन ने कहा भगवान से ना, तो आगे आ जाओ। बस में किया हुआ मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वभाव में लगाता हुआ, अपने आत्मा को परमेश्वर के स्वभाव में लगाओ। बोले मुझ में जो लगाता हुआ, मुझ में रहने वाला परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता। वी ऑल वांट शांति, वी ऑल वांट पीस, बट वी नॉट गेटिंग पीस। हम लोग की तो फ्यूचर के विषय में सोचता है, वो कि तो पास्ट के विषय में सोचता है, या कि तो अभी के विषय में सोचता है। यहां बैठ के भी हम लोग, हमारा मन जो है ना, वी आर सिटिंग हियर विद आवर बॉडी, बट समटाइम्स आवर माइंड गोज एवरीवेयर। आवर माइंड इज सो पावरफुल और सो फास्ट, सेकंड मिनट में जहां मांगो वहां पहुंच जाए। थिंक ऑफ आई मीन अमेरिका, माइंड हमारा अमेरिका चला गया, अब भी चला गया अमेरिका। थिंक कि हम सुबह में बैठा है, सुबह चला गया, नहीं बाह में बैठा है, बाह चला गया। कहा जहां बोलो वहां चला जाए, ये इतना फास्ट मन जावे। तो इसको कंट्रोल करना है। एंड दिस इज द वन विच गिव्स अस लॉट ऑफ स्ट्रेस एवरी टाइम, सो कॉल्ड अननेसेसरी स्ट्रेस, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, हम लोग वी आर जस्ट लाइक गार्बेज ट्रक। स्वामी जी कहते हम लोग कचरा, कितने कचरा हम लोग इसमें लाद लेते हैं। एक तो लादते हैं, बट इसको हम लोग कभी एम्प्टी नहीं करते। अभी आप हार्ड ड्राइव में कुछ डालो ना, कंप्यूटर में डालते रहो, गेस व्हाट, सीज हो जाएगा एक दिन ना, ओवरलोड। फिर उसको डाउनलोड कर करके आप उसमें सेव करना पड़ेगा अलग से उसको, नहीं, या क्लीन कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो हार्ड ड्राइव, इसमें ना हम लोग इतना चीज डालते हैं, कभी इसका क्लीन भी नहीं करते हम लोग। इसके लिए हमारे को स्ट्रेस होती है, इसके लिए छोटे छोटे चीज में हम क्रोध कर दे, गुस्सा हो जाती है हमारे को, वी आर एंग्री लिटिल थिंग्स। क्या है बस हमारे अंदर में कितना कचरा भरा है। इसके निकालने के लिए कृष्ण भगवान के नाम, श्रीमद् भागवत गीता या कोई भी डिवोशनल थिंग, इससे ही एक कचरा निकल सकता है। दिस इज नो अदर वे। इसको डाउनलोड करने के लिए अंदर में दिस इज नो अदर वे। एक भगवान के सत्संग से ही ये निकल सकता है। इफ यू गाइज नो एनी अदर वे, लेट मी नो। कोई और अदर वे जानते हो तो लेट मी नो हाउ यू कैन गेट
दिस इनसाइड क्लीन है। और ये योग बोले क्या? योग मतलब कि जो हम लोग मिडिल में आ जाते हैं, जब मिडिल में आते हैं तो कैसे हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। बोले ये योग ना तो बहुत खाने वाले का, पर्सन ही ईट्स टू मच नहीं आता। कितने लोग खा लेंगे ना, इतना खा लेंगे फिर सांस नहीं आएगा, बोला कैन ब्रीथ इतना खाते, बहुत खाने वाले को, और ना बिल्कुल ना खाने, समबडी जस्ट फास्टिंग एवरी टाइम, ठीक है, फास्टिंग एवरी टाइम, उनको नहीं योग आएगा। और ना बहुत शयन करने वाले को, समबडी जस्ट स्लीप्स एवरी टाइम, उसको भी नहीं मिलता योग, स्वभाव वाला। और ना सदा जागने वाले को, और दोज हु हार्डली स्लीप्स, उसको भी योग नहीं मिलेगा। इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं मिडिल में आओ ना, इतना ही सो जितना जरूरत है, इतना ही जागो जितना जरूरत, जितना ही खाओ जितना जरूरत है, सब कुछ मिडिल में आओ। भगवान कहते हैं इसको योग कहते हैं, मिडिल में आओ। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाला, और ये दुख को नाश कर देगा। योग को, आपके अंदर में जितने दुख वो सब नाश हो जाएगा। लेकिन यथा योग आहार विहार, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले, और यथा योग सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जितना सोना, जितना जागना, जितना खाना, इसको ही ये जो शांति है वो मिल सकती है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों में स्पृह रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा में ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की ही होती है। आप जब शांति का अनुभव करने लग जाओगे ना, अंदर में जब आप शांत हो जाओगे, तो भगवान कहते हैं कि जैसे भी दीपक यहां जल रहा, कोई हवा नहीं चले तो दीपक स्ट्रेट, दीपक कभी हिले नहीं, दीपक हिलता नहीं। ऐसे ही जो योग में हो जाता है ना, तो उसके अंदर में जो आत्मा है वो शांत हो जाता है, वो हिलता डुलता नहीं। जब हिलता डुलता नहीं तो उसी को वो इनर पीस कहते हैं। इनर पीस, जब यहां भागे तो उसको इनर पीस, जो अंदर की इनर पीस है, उसको यहां पर भगवान कहते हैं उस सिद्ध होता है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग जो अनंत आनंद है। यहां पर अनंत आनंद, हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट? अनंत आनंद, वही से हम लोग बात कर रहे हो ना, अनंत आनंद है, एवर लास्टिंग आनंद, नेवर फिनिशेस, अनंत आनंद जिसको कहते हैं। उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित या योगी परमात्मा के स्वभाव से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि परमात्मा की प्राप्ति करना। परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर कोई और दूसरा लाभ है, ये जो नहीं मानता है, नहीं, बिकॉज परमात्मा की प्राप्ति से हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। उससे बड़ा प्राप्ति के मानना, बोले परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं है। दैट्स द अल्टीमेट, कि हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं है, ये मानता है। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। और परमात्मा की प्राप्ति जब हो जाता है तो बड़ा दुख भी आ जाए उसमें वो हिलेगा नहीं। और दुख कहां आता है?
दुख कहां पर आता है? दुख हमारे शरीर पर आता है। दुख कम्स इन आवर बॉडी। दुख शरीर में आता। जब ये शरीर मेरा है ही नहीं, दिस बॉडी इज नॉट माइंड, इज ओनली अ व्हीकल आई एम कैरिंग एंड आई कैन लीव, इट्स जस्ट लाइक अ रेंटल कार. Body is just like a rental car, we just driving it. Some drive it very rough, some drive it very nicely, right? Rental car को जब ड्राइव करते कोई कोई बहुत रफ से ड्राइव करते, ऐसे we drive this body sometimes very roughly. क्या क्या डाल देते हैं उसमें हम लोग, हैं? बेंजीन की जगह डीजल छोड़ देते हैं. क्या क्या डालते हैं ये फिर भी चल रहा है ना. वो कब खड़ा हो जाए हूं नो, कितने चीज हम लोग इसमें डाल देते हैं, जो चाहिए नहीं वो भी डालते हैं. तो इट्स जस्ट अ व्हीकल एंड वी जस्ट हैव टू लीव दिस वंडर. ये हमारे दिमाग में रहना है. अभी मैं वहां जहां पर थे वहां पर ये हर समय में बताया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा सरप्राइज इन द वर्ल्ड. What is the most surprising thing in the world? यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है. सबसे बड़ा सरप्राइज युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम देख रहे हैं कि सब मर रहे हैं, सबको हम जाकर जलाकर आ रहे हैं, लेकिन यही सोचते हैं कि मेरी बारी नहीं आएगी, मैं तो चिरंजीवी हूं. सबसे बड़ा आश्चर्य है. वी गो टू द फ्यूनरल, वी सी दिस गाय इज क्रीमेटेड, वी गेट सैड. व्हेन वी कम आउट, गेस व्हाट, वी थिंक दिस गाय हैज गॉन, आई एम नॉट गोइंग टू गो, आई विल बी हियर फॉरएवर. ये सबसे बड़ा सरप्राइज है. बट इन रियलिटी दिस डजंट हैपन. We all have to go. इस जगह का नाम, यहां का नाम है मृत्यु लोक. मृत्यु लोक में हम लोग सब मर रहे हैं. We are all dying every day. Some just complete dying, but we are all going to go. If we have this in our mind, then guess what? We will be driving this vehicle very, very nicely. है कि नहीं? We won't abuse this vehicle. But because we know we will be here forever, guess what? We'll drive this the way we want it, how I want it. I'm not going to listen to anybody else. है? तो वही यहां भगवान कहते हैं कि सबसे, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ना, तो हमारे को दुख नहीं होता. उससे चलाए मन दुख नहीं होता, क्योंकि दुख शरीर से होता. शरीर में तो आते रहेंगे. शरीर में सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण ये तो होता ही रहेगा. ये शरीर का धर्म है. जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए. वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है. संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करते हुए उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करे. धीरे धीरे बोले अभ्यास कर. अभ्यास के मतलब प्रैक्टिस. हम वहां पर ये भगवत प्राप्ति के विषय में बात कर रहे थे, तो वहां पर एक बंदा था, उसने कहा इट्स वेरी हार्ड टू अटेन कृष्णा. हाँ है, बट अभ्यास, भगवान बोले क्रम क्रम से अभ्यास, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस.
Those who go to Olympics, do they go to Olympics just one day? Okay, I'm going to go Olympics this year and I'm all good. I'm a good runner. When they are born little, that's when they start practicing. Swimming के लिए छोटे से they wake up 4 in the morning, jump in the pool and they practice and practice and practice. That's when they go. After so many years, then they go to the Olympics. नहीं? प्रैक्टिस करना पड़ता। ऐसे ये भी प्रैक्टिस करना पड़ता। हम लोग बाकी सब चीज प्रैक्टिस करते हैं, एक भक्ति की प्रैक्टिस नहीं होती हमारी, इसकी हम लोग सब छोड़ देते। वही भगवान ने क्रम से स्लोली यू प्रैक्टिस, और परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करें। या स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। मन तो भागेगा, मन विल गो एवरीवेयर, बोले जहां अननेसेसरी जगह जाएगा मन विल गो अननेसेसरी जगह वे डजंट नीड टू गो। द माइंड विल गो a lot of places where it doesn't have to go, but you have to bring it back and put it at the feet of Krishna. Bring it back and put in the feet of Krishna. बार बार अभ्यास करो, प्रैक्टिस, that's what it says. ये स्थिर रहने वाला नहीं, मन या एक जगह नहीं रहे, मन, your mind will just go everywhere. Have to control your mind. अभी mind controls us. नहीं, इतना बड़ा बॉडी के माइंड एंड द 5 senses are controlling us, but we have to be controlling them. क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होती है। आनंद प्राप्त करना और उत्तम प्राप्त करना है तो इस पथ पर चलना है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हुई कृष्ण भगवान ही सब आत्मा है और उस आत्मा को सब में देखना है, सब जगह हमारे परमात्मा ही है। जब ऐसे बोले देखने लग जाए, भगवान कहते मैं उससे अदृश्य नहीं होता, यानी उसके सामने आकर वो प्रकट हो जाते, अनुभव होने लग जाता कि नहीं ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, जो कि हकीकत में है। सब में है परमात्मा की नहीं, जितने हम लोग जीवित है परमात्मा, चाहे मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, सब में है भगवान की नहीं। ऐसे बोले देखते रहना चाहिए। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदघन वसुदेव को भजता है, भगवान का भजन करता है, भगवान को याद करता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मुझ में ही बढ़ता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने स्वभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। क्योंकि हे कृष्ण, बोले जो आपने योग कहा है ना कि हमारे बोले हमारे मन की जो चंचलता, इसके कारण हम ये नहीं देख सकते कि बहुत दिन तक रुकेगा, ये भाग जाएगा, है ना। यहां
अर्जुन बोले चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल बलव दृढ़म। बोले ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल, मन घूमेगा है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान मन, जहां जाना चाहता माइंड, इफ यू मेक अप योर माइंड यू वांट टू गो हियर यू विल गो, देन व्हाट हैपेंस, वही बोले इतना ताकतवर है, इट जस्ट हम लोग को बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति दुष्कर मानता हूं। जैसे बड़ा हवा चल रहा हो वायु को और आप रोको, आप नहीं रोक पाओगे ना। स्ट्रॉन्ग विंड, but it's just like stopping a strong wind to stop your mind. बोले नहीं रुकेगा। तो भगवान अब बताया किया, भगवान क्या बोलते, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चंचलम। भगवान बोले हाँ आप ठीक कहते हो, मन वास्तव में बहुत चंचल है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से बस में होने वाला, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में हो सकता। अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस, भगवान कहते हैं प्रैक्टिस से मन बस में होगा। फिर प्रैक्टिस टू कंट्रोल योर माइंड इट विल बी कंट्रोल, बट हम लोग इसको नहीं। अभ्यास और वैराग, वैराग के मतलब कि छोड़ना, जैसे हम लोग कहें ना कि ये भी मेरा ये भी मैं, नहीं, जितना में हम संतोष, वैराग कि इतना आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्टेंट। हैप्पी वही बंदा रह सकता है जो कॉन्टेंट है, हु इज सेटिस्फाइड इनसाइड कि ना दिस मोर देन इनफ, आई एम हैप्पी। अदरवाइज बिलियनियर्स आर स्टिल नॉट एट पीस, बाकी मैं और कर लू और कर लू, मोह 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 मोह। शांति जो कॉन्टेंटमेंट, वहीं से हम शांति मिलेगी, नहीं तो वहीं से कितनों भाग लो शांति नहीं मिलेगी। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, भगवान कहते हैं, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसकी प्राप्ति होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन फिर बोलते हैं भगवान से, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग हो, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला नहीं है। अर्जुन फिर पूछते हैं, बोले कि जो योग साधन करते, जो भगवान के लिए चल पड़ते हैं बीच में जाकर, और they cannot attain Krishna in halfway through they die, मिडिल में जाते जाते जो भगवान को नहीं प्राप्त करते और बीच में मर जाते, उनकी क्या गति होती है? वो नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, उनकी क्या गति होती है? भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता और न परलोक में। जो कोशिश करे भगवान के तरफ जाए के लिए, दे कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, आधा इन दिस लोक ओ यादा लोक, भगवान कहते। क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए, जो अपना आत्मा को उद्धार करने के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त करता। जो भगवान के लिए चले, जो भगवान की स्तुति करे, भगवान की पूजा करे, दे कैन नेवर बी, क्या बोले, दुर्गति को नहीं प्राप्त, दे कैन नेवर गो डाउन, दे कैन नेवर गो टू हेल। दुर्गति यानी नीच योनि में नहीं जाएंगे, दुर्गति को नहीं प्राप्त होंगे। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त हो गए। दोज हु ट्राइड टू अटेन कृष्णा, बीच में जो खत्म हो गया, हाफ वे थ्रू दे फिनिश्ड इट,
and they could not attain Krishna, they'll go to heaven. Right? फिर उस में बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेते. Then they'll have another birth and they'll come to a person where a lot of devotion is happening, and he'll continue his devotion where he left it in next life, continue from there. फिर वहां से वो पूरा करेगा. भगवान याद करते कि कौन मेरा था, कौन मेरा नहीं है. अथवा वैरागवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ऐसा जन्म बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो प्राप्त करना चाहते, जो एफर्ट लगाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि जो एफर्ट लगाते हैं भगवान को पाने के लिए. देख लो हम लोग संसार में, भगवान कहते हैं लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कोई मेरे को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं. Billions of billions people on this earth. There are only few people who attempt to attain Krishna. Attempt. प्रयास करते हैं. और उन प्रयास करने वालों में से कोई ही मेरे को प्राप्त करता. और those who are attempting, they're not fully heartedly attempting. उसमें से भी कोई ही मेरे को प्राप्त कर सकता. So very limited people go to Krishna. वही है भगवान कहते हैं. वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है. और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है. Whatever devotion we do in this life, भगवान कहते devotion never dies. Devotion never gets destroyed. It will carry you into another life. If you have another life, your devotion will go with you. And then from there you'll speed up. हम लोग इस जन्म में we are going towards devotion in this life. That means हम लोग के previous life में कुछ हम लोग ऐसे किए थे जिसके कारण आज हम लोग को यहां से continuation मिला है. नहीं, ये devotion is one thing which never gets destroyed with this Atma. Atma goes from body to body, body to body, body to body, everywhere. But devotion is the one which gets carried away. Wherever you go, devotion goes with you. कृष्णा का नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. That mantra goes with you. कोई एक मंत्र ले लो, कोई भी चीज. Devotion is the only one which does not get destroyed. It carries on. वही भगवान यहाँ कहते कोई डिवोशन वो नहीं हो. वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता. पहले के अभ्यास से आज हम लोग भगवान में लगा, इसका मतलब हमारे को पहले से अभ्यास था, तब हम लोग भगवान में लगे हैं. नहीं तो कौन आता भगवान में? कितनों को बुला लो, कौन आता? तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी तो पिछले आने अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है. ये हम लोग जब भगवान के याद करते हैं ना, या भगवान को जब अनेक जन्मों के संकल्प बल से ही हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ना कुछ कई जन्मों में किया, तब वो आकर आज हम लोग को इस तरफ लगाता है कि तू चल इस तरफ. वो सब जो हम लोग के पुण्य वही लेकर आता है. योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है. शास्त्र
ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो जा। बोले तू योगी कम इन मिल, योगी हो जा, मेरा ध्यान कर। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए आत्मा राम से मुझको निरंतर भजते हैं। आत्मा से जो हमेशा, निरंतर का मतलब कि ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा, निरंतर बोले भजते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान कहते हैं हमारे को परम श्रेष्ठ वही योगी है। आई लव हिम टू द टॉप। गड़बड़ बोल दिया इंग्लिश में ना। परम श्रेष्ठ, उसको परम श्रेष्ठ मतलब कि ही इज माई मोस्ट डिवोटेड डिसाइपल। परम श्रेष्ठ जो भगवान का निरंतर भजते, हमेशा जो भजते, भगवान यहां कहते हैं। ओम तद्दिति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षोडशो अध्याय समाप्त। बोलो राधेवर श्री कृष्णचंद्र की जय हो। 15 मिनट एक अध्याय में तो 15 मिनट जस्ती हुए, तो हम लोग सोचा 2 अध्याय पढ़ेगा। चलो।